गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक चैप्टर वेक्टर। वेक्टर वेक्टर समझने से पहले हम लोग सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जितने भी लॉज डिफाइन होते हैं वो सबके सब फिजिकल क्वांटिटीज पे ही बेस्ड होती है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटीज विच कैन बी measured directly or indirectly। सेकेंड पॉइंट है all physical laws all physical laws are based on physical quantities। नेक्स्ट पॉइंट है a physical quantities can be represented as q equal to n into u, where q equal to physical quantity, n represents numerical value, and u represents unit of given physical quantities। Here we can see as n increases, या ऐसे लिख सकते हैं here q equal to constant, so as n increases u decreases and n decreases u increases। So the conclusion is that if we draw if we draw the graph between numerical value and its unit, we can see a very fundamental graph
first graph between numerical value with unit, second graph the product of numerical value and unit with numerical value, third graph between product of numerical value and unit with units. First graph is basically a graph of rectangular hyperbola. A graph of rectangular hyperbola. The second graph is a graph parallel to x-axis. And the third graph is also a graph parallel to x-axis. These are the graph based on the expression q equal to nu. अब स्टूडेंट्स हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं. क्लासिफिकेशन of physical quantities. सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे on the basis of magnitude and direction. फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए. वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है क्वांटिटीज which have only magnitude. only magnitude. Second point है these quantities follow simple algebraic addition. Simple algebraic addition. Third point है scalar quantities are represented by इसको हम लोग दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यू बोल दे कि अ फिजिकल क्वांटिटीज
is represented by alphabet. For example, length is represented by L, time is represented by T, mass is represented by M, distance is represented by D or X. There are large number of scalar quantities. चलिए स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटी को vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction and and direction and follows vector addition and follows vector addition. हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए सिंबल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी is equal to vector C. This is the addition rule of vectors. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने वेक्टर ए लिखा तो एक अल्फाबेट के ऊपर हम लोगों ने एक एरो का यूज किया है. तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एक एरो लगाकर. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय an arrow over alphabet. For example, displacement. x एंड इसके ऊपर हम लोग क्या लगा रहे हैं, एरो लगा रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम लोग वेक्टर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. ओके, जैसे देखते हैं यहां पे symbolic representation of vector. Symbolic representation of vector. A vector is represented by a vector is represented by an arrow. By an arrow. By an arrow. Here, this is the
till and also called initial point or a starting point of a vector. A starting point of a vector. This point of the arrow represent head, or we can say terminal point of the vector. Terminal point. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग टेल बोलते हैं एंड सेकेंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। टेल जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है एंड हेड जो होता है वो टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट को दिखाता है। इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। अब क्या है यहाँ पे कि जो लेंथ ऑफ द एरो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को एंड द कैप ऑफ द एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट देख सकते हैं। लेंथ ऑफ एरो represents magnitude and cap of arrow represents डायरेक्शन। अब यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट है, देखिए ध्यान से। आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल लिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो हम लोग यू कह सकते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो? डायरेक्शन इस बार सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। एंड सेम डायरेक्शन। अब हम लोग दो एग्जांपल और लेते हैं। There are थर्ड एग्जांपल। ये हमारा फोर्थ एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो लिखते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। फोर्थ एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड अनइक्वल है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड
अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेक्टर को डिफाइन किया है। एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है एंड फॉलो करता है वेक्टर एडिशन, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। यहां पे है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। आप देख सकते हो कि दोनों वेक्टर का टेल जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉमन टेल, पॉइंट ऑफ कॉमन टेल, पॉइंट ऑफ कॉमन टेल। अब आप यहां पे देख सकते हो कि दो एंगल फॉर्म हो रहा है। दिस इज द स्मॉल एंगल थीटा और ये जो है वो एक लार्जर एंगल है से फाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा जो है वो एक स्मॉल एंगल है एंड फाई शो कर रहा है एक लार्ज एंगल, लार्ज एंगल। अब आप ध्यान से देखें बातों, दो वेक्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हो कि दोनों का टेल एक कॉमन पॉइंट पे हो एंड द सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो होता है इन दोनों के बीच में, दैट इज द कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स is called angle between two vectors. The smallest angle represent angle between two vectors if they are connected at a common tail. अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है वेक्टर ए एंड सेकेंड हमारे पास है वेक्टर बी। अब इन दोनों के बीच यहां पे एक एंगल बन रहा है से 60 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसी चीज को स्टूडेंट्स लिखने का तरीका है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये क्वेश्चन मार्क। अब आप स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर का हेड है तो दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल है। हम लोग जानते हैं अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है तो दोनों वेक्टर का टेल एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। अब इन दोनों वेक्टर्स के टेल को अगर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो हमें एक प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। टू कनेक्ट कॉमन टेल ये ऐसे लिख सकते हैं, टू कनेक्ट
to connect tails of given vector at common point at common point we have to use a property called parallel shifting property property of a vector। हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। अगर वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मतलब ना तो उसके हम लोग मैग्नीट्यूड में चेंज ला रहे हैं और न ही डायरेक्शन में चेंज ला रहे हैं, तो इसका मतलब कि वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, मान लेते हैं अगर कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, तो हम लोग बोलेंगे अ वेक्टर इज changed if we change its पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड, सेकेंड पॉइंट डायरेक्शन एंड थर्ड पॉइंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को चेंज करने के लिए हमारे पास ये तीन तरीका है जिसे हम लोग किसी भी वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस ला करके, उसके डायरेक्शन में चेंज ला करके, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को चेंज करके। अगर एक वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि वेक्टर के, देखिए यहां पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर गिवन है से ये वेक्टर, अगर इस वेक्टर को हम लोग यहां से उठा करके पैरेलली शिफ्ट करते इस जगह पे, चाहे वो इस जगह पे, चाहे वो इस जगह पे, तो आप देख सकते हो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी वेक्टर हमारा डायरेक्टली पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रही है और ना ही इसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं अ वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, पैरेलली शिफ्टेड। एक वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे लौटते हैं। अब हमको यहाँ पे इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, और एंगल तभी निकलेगा जब दोनों वेक्टर्स के टेल किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट। तो कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर्स के टेल को एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करने के लिए हमें पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे कि इस बी वेक्टर को जो हमारे पास ये जो बी वेक्टर गिवन है, इस बी वेक्टर को हम लोग यहां से पकड़ेंगे और पैरेलली शिफ्ट करते हुए इस पॉइंट पे लेकर के आएंगे। ओके, कुछ इस तरह से यहां से हम लोग इस वेक्टर को ये वेक्टर कुछ हमारा ऐसे था, इस वेक्टर को यहां से पकड़ना है और इस वेक्टर को पैरेलली कुछ ऐसे शिफ्ट करना है। जैसे आप इस वेक्टर को पैरेलली यहां पे शिफ्ट करोगे तो आपको यहां पे एक एंगल दिखाई दे रहा होगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज कितना 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहां पे देखोगे कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पे नोट कर लेते हैं। ये था एक वेक्टर ए और दूसरा था वेक्टर बी। यहां पे एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था।
अब जो ये वेक्टर है हमारे पास, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करके इस पॉइंट तक लेके आएंगे। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये वेक्टर और ये लाइन, क्या ये दोनों पॉइंट आपस में पैरेलल है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपका कितना दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, 60 डिग्री। कितना दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। एक वेक्टर यहां पे, वेक्टर ए, और ये रहा कोई दूसरा वेक्टर बी। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। यहां पे ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, आप देख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का हेड जो है किसी कॉमन पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली आगे की तरफ क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो जैसे आप इसको पैरेलली आगे की तरफ शिफ्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे दोनों वेक्टर का, एक वेक्टर का हेड है तो दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन वेक्टर बी है, इस गिवन वेक्टर बी के हम लोग पैरेलली शिफ्ट कराएंगे। जैसे ही आप पैरेलली शिफ्ट कराओगे तब आप ध्यान से देखोगे कि इन दोनों वेक्टर्स का पॉइंट जो है एक कॉमन टेल से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लाइन है, एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैथ्स का एक रूल काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी अपने आप कितना डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको कितना दिख रहा है, देखिए ध्यान से, 60 डिग्री दिख रहा है। कितना दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड को हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वेक्टर सी, ये सारे कौन सा ट्रायंगल बताइए, ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमसे पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेकेंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, थर्ड है वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। अब आप ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग कोई भी दो वेक्टर्स को देखते हैं तो इस पॉइंट पे आप देखो ध्यान से, तो दोनों वेक्टर्स का टेल एक पॉइंट्स पे कनेक्ट नहीं है। हमें पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये रहा वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है हमारा वेक्टर सी। अब हम लोग जैसे ही इसको पैरेलली आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पैरेलली हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट करें, पैरेलली आगे की तरफ शिफ्ट करें सारे वेक्टर्स को। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर ये एंगल हमारे पास 60 था तो ये एंगल कितना बना, देखिए 120 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पे टोटल एंगल का सम कितना होता है, टोटल एंगल का सम कितना होता है, 60 या 180 डिग्री, 180 डिग्री। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन कुछ इस तरह से है। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, से थीटा, और ये एंगल क्या है हमारे पास, फाई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक लाइन पे टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके जो इंटरनल एंगल है वो सारे इंटरनल एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना वो कितना बन गया, 120 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। और सिमिलरली ये एंगल भी कितना बना, 120 डिग्री बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, इसके बीच में एंगल कितना बना, 60 डिग्री। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में भी कितना बना, 120 डिग्री। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल बन गया, ये बन गया 120 डिग्री। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में कितना बना, ये भी बना 120 डिग्री। एंड थर्ड, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, इसके बीच में भी एंगल कितना बना, 120 डिग्री बना। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ओके, तो यहां पे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हम लोग 3 एग्जांपल लिए। ओके, तो एक बार हम लोग इसको समराइज कर ले कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा वेक्टर्स में, तो जब हम लोगों ने वेक्टर से स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं। सारे फिजिकल लॉज जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज पे ही आधारित होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एंड यू, जहां पे एन न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड क्यू क्या होता है, यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स को चेंज करते हैं तो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अगर एन हमारा बढ़ रहा है तो यू हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और एन अगर डिक्रीज होता है तो यू हमारा इंक्रीज होता है। ओके, हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन के आता है, 3 ग्राफ। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह से डिवाइड हुआ, एक स्केलर में और दूसरा वेक्टर में। स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक अल्फाबेट से। ओके, और सिमिलरली वेक्टर्स जो होते हैं इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड होते हैं एंड डायरेक्शन होते हैं। ये फॉलो करता है क्या, ये एंड फॉलो, ये फॉलो करता है क्या, वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एरो को इस अल्फाबेट के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं। ओके, एक एरो के पास एक टेल होता है और एक हेड होता है। टेल स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हेड जो है उस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को दिखाता है। ओके, अब लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को एंड कैप ऑफ द एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल लिए, जिसमें पहले एग्जांपल के अंदर दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। सेकेंड एग्जांपल में मैग्नीट्यूड अनइक्वल है एंड इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो जो डिफरेंट वर्ड यूज हम लोगों ने किया है, इसके प्लेस पे हम लोग अनइक्वल मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं। अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड है एंड सेम डायरेक्शन है। थर्ड एग्जांपल में इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। फोर्थ एग्जांपल अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में अगर आप एंगल को फाइंड करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले दोनों वेक्टर्स के टेल को किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 एंगल देखते हैं, एक स्मॉलेस्ट एंगल बनता है और एक लार्ज एंगल बनता है। तो स्मॉलेस्ट एंगल को ही हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसके लिए हमको एक प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है, दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके चेंज, एक वेक्टर को हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड में चेंज ला करके, उसके डायरेक्शन में चेंज ला करके एंड उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को बदल करके। ओके, एक वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है। जब चेंज नहीं होगा तो वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, ये पैरेलल शिफ्टेड प्रॉपर्टीज हमें दिखाता है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच अगर हमें एंगल को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है। जहां पे हम लोग क्या किए, इस वेक्टर बी को पैरेलली हम लोग आगे की तरफ क्या कर दिए हैं, शिफ्ट किए। और जैसे इस वेक्टर को पैरेलली आगे की तरफ शिफ्ट करोगे
तब हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम लोग इस वेक्टर को पैरेलली इस तरफ शिफ्ट किए, इस तरफ। कुछ एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल दिए गए हैं। फिर एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाला, जो आंसर कितना मिला 120 डिग्री। ओके, चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।